ادغام کا لغوی معنی ہے داخل کرنا، ملانا، جیسے کہ آپ کے پہلے بھی چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں نون ساکن والے بھی میم والے میں کہ ادغام کا میننگ کیا ہوتا ہے۔ ادغام کا لغوی معنی داخل کرنا، ملانا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جن کے تجوید کی روح سے اس کا معنی ہوگا مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ادغام کی اقسام، مدغم ہوتا ہے جو پہلا لیٹر ہوتا ہے اس کو مدغم کہتے ہیں، اور جو دوسرا لیٹر جس کے اندر مرج کرتے ہیں ہم داخل کرتے ہیں اس کو مدغم فی کہتے ہیں۔ اب ان کو یعنی کہ دونوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کر دیں گے کہ دونوں ایک ساتھ، اب دونوں یعنی کہ ایک ساتھ ادا ہوں گے، علیحدہ علیحدہ دونوں حروف ادا نہیں ہوں گے، تو وہ ان کے اوپر تشدید بھی، ہم کہتے ہیں نا ادغام کی تشدید آ گئی ہے تو وہ مشدد ادا ہوتے ہیں۔ تو اب ان میں ہم ادغام کی اقسام ہیں، سب سے پہلے تو ادغام کی دو اقسام ہیں، ادغام کبیر اور ادغام صغیر۔ کبیر سے مطلب آپ کو بڑا پتہ ہے، بڑا کو کہتے ہیں کبیر، اور صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں۔ اب اس میں دیکھ لیتے ہیں ڈفرنس کیا ہے، ادغام کبیر کیا ہے؟ ادغام مدغم متحرک ہو اور اس کو ساکن کر کے مدغم فی میں داخل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو ہے نا جب بھی دیکھا ہم نے ادغام کیا تو پہلا لیٹر ساکن ہوتا ہے ہمیشہ، جیسے ہم نے نون ساکن کے احکامات میں پڑھا، میم کا بھی ہم نے ادغام شفوی کیا تو اس میں بھی یہی تھا کہ پہلا لیٹر جو تھا وہ جو ہے ساکن ہوتا ہے، اور جو اگلا لیٹر جو ہوتا ہے نا وہ متحرک ہوتا ہے، تو پھر ہم پہلے کو جو ساکن ہوتا ہے اس کو ہم متحرک کے اندر جو ہے نا ادغام کرتے ہیں ان کا، تو وہ ہم اس کو ادغام ہو گیا۔ لیکن اب اس میں ادغام کبیر اور ادغام صغیر کا ڈفرنس کیا ہے کہ ادغام متحرک مطلب اب اس میں جو ہے نا مدغم جو ہے متحرک ہوگا، مطلب ہم نے جو پہلے کہا تھا کہ پہلا لیٹر ساکن ہوگا تو دوسرا متحرک ہوگا تو ادغام ہوگا، لیکن اب ادغام کبیر میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو پہلا لیٹر ہوگا، کوئی سا بھی لیٹر ہوگا، تو وہ ابھی جو ہے نا جیسے میم ہے، ہم میم کو لے لیتے ہیں، اگر میم ہے ادغام کر رہے ہیں تو پہلا لیٹر بھی متحرک ہوگا، کوئی نہ کوئی مطلب زیر زبر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے اس پہ، پہلا لیٹر بھی مدغم متحرک ہوگا اور اس کو ساکن کر کے مدغم فی میں داخل کیا جائے گا۔ اب دوسرا جو ہے نا وہ تو ہوگا ہی متحرک، مطلب مدغم فی تو لازمن متحرک ہی ہوگا، تو اس کے اندر ادغام کیا جائے گا، مطلب اس میں بھی زیر زبر پیش کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے۔ اور اب ادغام کبیر میں یہی ڈفرنس ہے کہ ادغام کبیر میں آپ کا مدغم جو ہے نا وہ بھی متحرک ہے، اور آپ کو پورے قرآن پاک میں صرف پانچ کلمات ایسے ملیں گے، مطلب پانچ الفاظ ایسے ہیں جن میں ادغام کبیر ہوا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا سا مطلب آپ کا ادغام کبیر کی صرف پانچ مثالیں ہیں پورے قرآن پاک میں، اور اس کو ہم روایاتی حفظ کے مطابق کیونکہ یہ لکھی گئی ہے القول سدید، تو اس روایاتی حفظ کے مطابق ان کا ادغام کبیر کے صرف پانچ کلمات ہیں، اور اس میں جو ہے نعما، اصل میں نعما اور پھر ماں تھا، یعنی اصل جو کلمہ تھا، دو کلمات جو ہم ادغام کرتے ہیں وہ دو کلمات کے بیچ میں زیادہ تر ہوتا ہے، ایک میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ علیحدہ کنڈیشن ہوتی ہے، نی ایما، اور ماں علیحدہ سے تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ والا میم اور یہ میم جو ہے یہ دونوں متحرک ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اب جو ادغام کبیر ہوتا ہے نا اس میں ہم نے یہ جو مدغم ہے نا اس کو ہم نے خود ساکن کرنا ہے، کیونکہ ہم پہلے کو ساکن کریں گے تو پھر ہم اگلے میں اس کو داخل کریں گے، وہ جو ہے نا دونوں متحرک تو ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں انہوں نے یہ لکھا کہ مدغم متحرک ہو اس کو ساکن کر کے، ٹھیک ہے، یہ ایک آپ نے پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کو پہلے ساکن کریں گے اس والے میم کو، یہ جو میم ہے نیما کا، اس کو ساکن کر کے پھر اس میم کے اندر ہم اس کو مرج کریں گے، تو اب یہ ہو جائے گا ادغام کبیر۔ یعنی اما اصل میں نعیمہ تھا تو اس کو ہم نے ملا دیا نعما، کہ ہم نے پہلے میم کو ساکن کر دیا، اور مکنی اصل میں مکہ مکہ نی تھا، آپ اس میں دیکھیں مکہ نانی تھا، اصل میں یہ جو مکنی آپ کو ہم پڑھتے ہیں زیادہ تر آپ کو قرآن پاک میں یہی ملتا ہے، لیکن بعض مصحف میں ایسے بھی لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جس طرح سے بھی آ جائے گا، آپ کو پڑھنے کا طریقہ بس پتا ہونا چاہیے۔ مکنی اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کاف کے اوپر جو تشدید ہے وہ تو اس کلمے کی اپنی تشدید ہے، ٹھیک ہے، اس حرف کی اپنی، لیکن جو نون کے اوپر تشدید ہے وہ ادغام کی تشدید ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اصل لیٹر تھا مکہ نانی، تو یہ نانی جو تھا نا یہ نانی، یہ نا اور یہ نی، ٹھیک ہے، یہ دونوں نون متحرک ہے۔ اب ہم یہ ہوگا کہ ہم اس کو مرج کرنے کے لیے پہلے نون کو ساکن کریں گے، اور ساکن کر کے پھر اس نون کے اندر اس کو ادغام کر دیں گے۔
अब तीसरा कलमा है तमुरूनी। तो असल में ये तमुरूनानी था, तमुरूनानी था। इसमें भी दो नून है और दोनों नून मुतहरिक हैं। अब एक पहले नून को साकिन करेंगे और अगले नून के अंदर उसको मर्ज कर देंगे, ये तमुरूनी बन जाएगा, ठीक है। और इसे आतुहाजूनी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास ये आया इदगाम हो के, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, ये यहाँ पे अभी इदगाम नहीं हुआ, वह आतुहा जू नानी है। तो यहाँ पे आप ने नानी जो है, यहाँ पे इसका भी नून, दोनों नून मुतहरिक है। तो नून को, पहले नून को साकिन करके अगले नून के अंदर उसको मर्ज कर देंगे, तो ये आतुहा जू नी हो जाएगा। अब यहाँ पे है नंबर 5, लाता मन्ना। अब ये जो है, अब मैंने भी अदा किया लाता मन्ना, तो आपको पता नहीं चला होगा मैंने इसको कैसे अदायगी की है, मतलब इसका देखते हैं कैसे आपको नहीं मिला। अब असल में जो है ना, ये ता मनूना है। असल जो है ये कलिमा है, इसलिए यूसुफ में आता है ला ता मनूना। पहले नून के ऊपर दम्मा है और अगले नून भी है वो जबर के साथ है। अब इसमें जो है ना, आप देखें लाता मन्ना में दो जगह हैं, मतलब दो इसमें तो जिहाद हैं, दो चीजें हम कर सकते हैं, दो कि एक तो हम इसमें इदगाम माल अशमाम कर सकते हैं, और इजहार माल दूसरा है, हम इसमें इजहार माल रोम कर सकते हैं। अब इदगाम से आपको पता चल रहा होगा, मतलब दोनों नूनों का मर्ज कर देना। इदगाम माल अशमाम, और अशमाम की टर्म से आप इसको वाकिफ होंगे कि ये दम्मा पे होती है। जो अशमाम जो है, इसका ताल्लुक दम्मा से है। अब ये इन्होंने यहाँ पे देखें, ये जो ला ता नूना है, इसका जो पहला नून है इसके ऊपर दम्मा है, ठीक है। अब ये इसका जो आप पुराने पाक में ज्यादातर इस तरह से भी लिखा आता है लाता मन्ना। तो अब आपने इसको अदायगी में इसका ये ध्यान रखना है कि इदगाम मा अशमाम का मतलब है आपने होंठों से इशारा कर देना है। होंठों से, मैं आपको इसकी वीडियो भेज दूंगी, ठीक है, आपको ग्रुप में, कि आपने होंठों से इशारा कैसे करना है। जैसे मैं अब बोल रही हूँ ता मन्ना, तो मैंने होंठों को गोल किया है। ये इसका अशमाम का ताल्लुक होता है, सिर्फ देखने के साथ होता है, ठीक है। ये आपको यानी कि आप देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि उस बंदे ने इशमाम किया है, लेकिन सुनेंगी तो आपको कोई पता नहीं चलेगा, कि आपको लगेगा इशमाम नहीं हुआ। तो इशमाम क्या होता है? इशारा करना, होंठों को गोल करके दम्मा की तरफ इशारा कर देना, क्योंकि दम्मा जो है होंठों की गुलाई से अदा होता है। तो जब हम इदगाम माल इशमाम करते हैं, तो हम जो नून है उसको नून के ऊपर क्योंकि दम्मा है, अब हमने क्योंकि जाहिर करना है कि एक नून के ऊपर दम्मा है, तो हम ये जब उसको मर्ज कर रहे होंगे, मीम से नून की तरफ जा रहे हैं, मतलब इसमें गुन्ना भी आता है, आपको पता है। नून है, नून मुशद्दद है, तो गुन्ना भी आएगा। तो अब जब से अब गुन्ना की अदायगी जब कर रही होती है ना, तो आपने उस दौरान अपने होठों को गोल कर देना है, ठीक है। थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस लगेगी आपकी। तमन्ना, तो आप ये आपके मैंने अभी किया है, लेकिन आपको पता नहीं चला कि मैंने होठों को गोल किया है, ये इसको कहते हैं इदगाम माल अशमाम। और अब इजहार मा रोम कैसे होगा? अब इजहार मा रोम आपको देखिए कुरान पाक में बाद मसाहिब में ऐसे भी लिखा नजर आता है, मतलब ये पूरा जो ये वाला जुमला है, दोनों हरूफ हैं, कलिमात हैं, ये ऐसे लिखे नजर आएंगे ला ता मा नूना, मा नूना। आपको रोम का मतलब बताया था, रोम जो होता है दो हरकत पे होता है, एक दो धम्मा पे होता है और एक कसरा पे होता है, ठीक है। अब इजहार का मतलब कि हम नून को जाहिर कर देंगे, और नून को जाहिर क्या करेंगे? रोम का मतलब 1/3 हरकत को जाहिर करेंगे, मतलब उसकी हम पूरी हरकत नहीं पढ़ेंगे, नू ना नहीं करेंगे, हम करेंगे नू ना, ठीक है, नू ना। तो नून को हमने हल्का सा अदा किया, और हमने ना को पूरा अदा किया, ठीक है। तो ये होगा, इसको कहेंगे इजहार मारोम। किसका इजहार? इस वाले नून का ऊपर जो दम्मा है उस नून का इजहार हो जाएगा, तो इसको कहेंगे इजहार मारोम। ये दोनों मैं इसकी वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगी, कि ये आपको कैसे करना है। डॉक्टर एमन सुवेद हैं, उनकी वीडियो मैं शेयर करती हूँ अपने ग्रुप में, जब भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो उन्होंने बड़ा अच्छा बताया हुआ है। तो आप लोग देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको मजीद समझ आ जाएगी। अब आपने बस इदगाम माल इशमाम से ये समझना है कि हमने
इस तरह पढ़ना ये है। इदगाम आल इशमाम में हमने ये पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के दौरान हमने होंठों की तरफ मीम से जब नून की तरफ जा रहे होते हैं, मुन्ना के दौरान, मुन्ना जब अदा कर रहे होते हैं मन्ना, तो हमने जो है ना वो गोल होंठों को बस गोल कर लेना है। ठीक है। अब जो इजहार मार रोम होगा वो यहाँ पे हो जाएगा कि आपने लाता मनु ना, नु ना, तो रोम मतलब आपने दम्मा की वन थर्ड हरकत अदा करनी है और तेजी के साथ नून की तरफ चले जाना है। तो इसको कहेंगे, इन दोनों टर्म्स का नाम याद रखें और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं माँ इजहार मार रोम। इस वाले को माँ इजहार मार रोम कहेंगे और इसको कहेंगे इदगाम माल इशमाम, जब हम इशारा करेंगे। आप क्वेश्चन अपने ज़हन में अगर आप लोगों के हैं तो इंशाल्लाह ये खत्म होते जैसे लेक्चर तो मैं आपको देती हूँ, ठीक है। अब इदगाम कबीर की ये एग्जांपल होगी कि पहला भी मुदगम भी मुतहरिक होगा और मुदगम फी भी मुतहरिक होगा, और हम इसको खुद साकिन करके मुदगम को तो मुदगम फी के अंदर दाखिल करेंगे, तो ये इदगाम कबीर होगा। रवायत हफ्स में इसकी सिर्फ 5 एग्जाम्पल मिसालें हैं, और ये पांचों जो कलिमात हैं ये आपको याद रखने होंगे। अब नंबर दो, जो इदगाम की इकसाम में नंबर दो किस्म थी, वो इदगाम सगीर था। मुदगम पहले से इदगाम सगीर होता क्या है, ठीक है। अब आप देखते हैं, सगीर का मतलब तो पता है, ये छोटा जिसको हम कहते हैं स्मॉल। अब मुदगम पहले से साकिन हो और इसको मुदगम फी में दाखिल किया जाए, जैसे अदहलू। अब देखिए, हमने कहा पहले जो हमारे था कि इदगाम की जो होता है कि पहले जो पहला लेटर जो होता है ना वो साकिन होता है, और अगला जो होता है मुतहरिक होता है। हम साकिन को मुतहरिक के अंदर दाखिल करते हैं, तो इसमें हमें कोई खुद से नहीं एफर्ट करनी पड़ता, हमने पहले वाला लेटर ऑलरेडी साकिन ही होगा, तो हमने बस उसका इदगाम कर देना। इस इदगाम को, इनके पहले वाला लेटर साकिन होगा और अगला मुतहरिक होगा, और इनके दोनों के इदगाम को हम कहेंगे इदगाम सगीर, ठीक है। और जैसे अब कद दाहलू की एग्जांपल दी हुई है, कद कद में जो आप देख लें, कद में दाल जो है वो साकिन है, और दाहलू, अब दाहलू में आप देख लें दो दाल इकट्ठे आए हुए हैं, पहला दाल जो है वो साकिन है और दूसरा दूसरा दाल मुतहरिक है, ठीक है। अब आप जब कुरान पाक में पढ़ती हैं, आप पढ़ते हैं यानी कि कद, इसमें जो है ना ये वाला दाल आप नहीं अदा करते, ये वाला दाल, ठीक है। आप डायरेक्ट ये जो इसके ऊपर जो होती है तशदीद होती है, अगले दाल के ऊपर तशदीद डाल देते हैं, इसीलिए तशदीद डाली जाती है। पहला दाल अदा नहीं होता, डायरेक्ट काफ को इस दाल के साथ मिला देंगे, ये जो यानी कि ये काफ है इस दाल के अंदर, इसको मर्ज कर देंगे, अदहलू, ठीक है, अदहलू। और ये दाल ये जो है ये जरा सख्ती से पढ़ा जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये यहाँ पे इदगाम के दो दाल हैं, कदहलू। तो हम ये नहीं करेंगे कद दाहलू नहीं पढ़ेंगे, इसको इदगाम करके कदहलू पढ़ेंगे। अब कैफियत के एतबार से इदगाम की अकसाम, तो कैफियत के एतबार से इदगाम की दो अकसाम हैं, ताम और नाकिस। इस वाली टर्म से, इन दोनों से आप तो थोड़ी सी तो वाकिफ होंगी वैसे। ताम होता है मतलब कि मुकम्मल तौर पे, ताम होता है मुकम्मल तौर पे कुछ हो जाना, और नाकिस होता है मतलब नामुकम्मल। ताम कंप्लीट और नाकिस इनकम्प्लीट हम कह सकते हैं, ठीक है। और ताम का आप देखिए इसकी इस्तिलाह में क्या होता है, हमारे तजवीद की इस्तिलाह में इदगाम ताम क्या है। मुदगम को मुदगम फी में इस तरह दाखिल करना कि मुदगम की कोई सिफ्त बाकी ना रहे, ठीक है। अब सिफ्त का इसमें ताल्लुक आ गया है कि अब सिफ्त कोई सिफ्त बाकी नहीं रहेगी, जैसे मिर रब्बी ही। अब मिर रब्बी ही में आप देखें, यहाँ पे मिन है और यहाँ पे रब्बी ही है। अब आपने देखा हमारी पहला लेटर साकिन है और दूसरा मुतहरिक है, यहाँ पे रा के ऊपर जबर है। अब हमने इनको आपस में इनका हमने कहा इनका इदगाम होता है, नून साकिन के बाद जब रा आ जाता है तो इनका इदगाम होता है। अब ये इदगाम जो है ना, वो ये यहाँ पे जब होगा तो ये ताम इदगाम हो रहा है। मतलब कि अब मुकम्मल तौर पे ये नून जो है बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा, ना इससे कोई सिफ्त रहेगी। मतलब कि मीम को डायरेक्ट, ये जो मीम है इसको डायरेक्ट रा के साथ मिला देंगे, मिर रब्बिही, ठीक है। उसको क्या करेंगे, मिर रब्बिही। वो यहाँ पे आपको पता है गुन्ना नहीं होता, क्योंकि नून साकिन के बाद रा है, तो वहां पे गुन्ना नहीं होता, तो इसलिए हमने मिर रब्बिही, और डायरेक्ट इसकी नून की कोई सिफ्त, मतलब नून की सिफ्त गुन्ना होती है नून में, आपको पता है, तो वो जो वो भी नहीं इसमें अदायगी नहीं, किसी चीज की अदायगी नहीं होगी।
डायरेक्ट मीम को रा के साथ मर्ज कर देंगे तो ये मिर रब्बी ही बन जाएगा। अब यहाँ पे तशदीद आ जाएगी इदगाम की। तो इसको जब हम कहते हैं कि इस नून की जो नून और रा का क्योंकि इदगाम हो रहा है ना दोनों का, तो अब कहेंगे नून की कोई भी सिफ्त नहीं बाकी रहनी चाहिए। तो इसको इदगाम ताम कहते हैं, ठीक है। कि हमने अब नून की कोई सिफ्त को भी अदा नहीं किया और हमने डायरेक्ट मीम को रा के साथ मिला दिया है। तो ये हम तो इसी तरह से कुल रब्बी, कुल रब्बी आप इसको भी देख लें जब हम कुरान पाक में इसको पढ़ते हैं। तो कुल रब्बी की बजाय हम कहते हैं ये काफ जो है हम इसको डायरेक्ट जो है काफ को रा के साथ मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं। अब क्योंकि लाम और रा का आपस में इदगाम हो रहा है, तो अब क्योंकि इदगाम ताम है, हमने कहा अब यहाँ पे हो रहा है जो इदगाम ताम हो रहा है, तो अब लाम की कोई भी सिफ्त जो होगी वो बाकी नहीं रहेगी, हमने डायरेक्ट काफ को रा के साथ मिला देना है। तो रब्बी, ठीक है। हमने जब अपने तरतीब के साथ इसको पढ़ना है तो हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब लाम और रा का इदगाम होगा और या नून और रा का इदगाम होगा तो इनकी कोई भी सिफ्त बाकी मतलब इदगाम ताम हो रहा है इनके अंदर। कि जो हमारा यहाँ पे नून था इसकी कोई सिफ्त अदा नहीं होगी, और यहाँ पे लाम है इसकी भी कोई सिफ्त अदा नहीं होगी, और डायरेक्ट काफ जो है रा के अंदर चला जाएगा, इदगाम हो जाएगा, इनका इदगाम हो जाएगा। इसको इदगाम ताम कहते हैं कि आपके पास मुदगम की कोई सिफ्त बाकी ना। मुदगम कौन सा होता है? जो पहला लेटर होता है। उसको हम कहेंगे। अब नेक्स्ट है इदगाम नाकिस। इदगाम नाकिस क्या होता है? मुदगम को मुदगम फी में इस तरह दाखिल करना कि मुदगम की कोई सिफ्त बाकी रहे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा मुदगम की सिफ्त कोई बाकी रहेगी, मतलब जो पहला लेटर साकिन है जिसको हम अगले लेटर के अंदर मर्ज कर रहे हैं, तो अब वो जो पहला साकिन लेटर है उसकी कोई ना कोई सिफ्त बाकी रही है। जैसे यहाँ पे देखें मैं यकूलू। अब देखें मैं यकूलू में आप देख लें तो यहाँ पे है मन यकूलू, असल ये है, ठीक है। लेकिन जब हम तरतील पढ़ते हैं तो हमने इसको मर्ज करना है, ठीक है। अब ये जो नून है, अब इसकी जो है ना, हम पहले जब अब यहाँ पे पढ़ा था तो हमने कहा था नून की कोई सिफ्त बाकी नहीं हुई। लेकिन अब जो है ना नून का जब या के अंदर इदगाम होगा तो फिर ये इदगाम नाकिस होगा, मतलब नून की सिफ्त बाकी रहेगी। मैं यकूलू। अब आप खुद देखें तो आप देखें आपकी नाक में आवाज आ रही है, तो सिफ्त गुन्ना जो है नून की वो बाकी रही है। मैं यकूलू। अब इसकी एक रीजन एक ये भी बयान की जाती है क्योंकि या और वाव जो है, अगला आपको म्यू वाल भी नजर आ रहा है, म्यू वाल में भी इदगाम नाकिस है कि नून की वहां पे भी नून की सिफ्त बाकी है। अब इसकी जो रीजन बयान की जाती है कि जो या है और जो वाव है ये हरूफ इल्लत है, आपको पता ना कमजोर हरूफ है। ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब क्योंकि नून की जो सिफ्त गुन्ना है आपने पढ़ा वो एक स्ट्रॉन्ग सिफ्त है, तो वो एक कवि सिफ्त है। तो वो जो हम नून का वाव के अंदर इदगाम करेंगे ना, तो ये जो है ना फिर नून की सिफ्त गुन्ना जो है ना वो बाकी रहेगी, और फिर ये या और वाव के अंदर इनका इदगाम होगा। इसको इदगाम नाकिस कहते हैं। कि हमारे पास जो पिछला लेटर है, जो पहले वाला जो मुदगम है, मुदगम वाला लेटर है उसकी सिर्फ कोई ना कोई बाकी रहेगी और उसको हम मुदगम फी में दाखिल करेंगे, ठीक है। ये था हमारे पास कैफियत के एतबार से इदगाम की इकसाम जिसमें जिनका ताल्लुक सिफ्त के साथ है कि पहले सिफ्त मुदगम की बाकी रहेगी या नहीं रहेगी। अब सबब इदगाम या मुदगम और मुदगम फी के एतबार से इदगाम की अकसाम, इसकी तीन अकसाम हैं, ठीक है। मिसलैन, मुतजानिसैन और मुतकारी बैन। आपने इनके जो है अदायगी सही करनी है क्योंकि बाज स्टूडेंट्स इनको मिसलीन, मुतजानिसीन और मुतकारिबीन बोल जाते हैं, ठीक है। अभी आपको क्योंकि जेर जबर पेश ना लगा हो तो पता नहीं चलता, लेकिन आपको क्योंकि इदगाम जो होता है ना दो हरूफ के दरमियान होता है, ठीक है। तो अब दो इसलिए इनको कहेंगे, मतलब जो अरबी में इस्तेमाल होता है या इससे पहले लईन, मुतजानिसैन, मुतकारिबैन, ये जो होते हैं ना ये मुसन्ना की साउंड है, ठीक है। मुसन्ना मतलब डुअल्स के लिए बोला जाता है, दो चीजों के लिए बोला जाता है। तो अब मिसलैन में जो है आप देखें मुदगम और मुदगम की जब दोनों महारज और सिफात में मुतहिद हों, पहला साकिन और दूसरा मुतहरिक हो, तो पहले को दूसरे में दाखिल करना। जैसे कद्दहलू, मिसलाइन में सिर्फ ताम होगा, ठीक है। इदगामी मिसलाइन सगीर इसका पूरा नाम है, आपने जब भी पूछे तो आपने पूरा नाम बोला है, इदगाम सगीर मिसलाइन या इदगाम मिसलाइन सगीर।
ये जो आप इनको बोल सकते हैं, या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका पूरा नाम ये होगा, इदगाम सगीर मिसलाइन। इदगाम सगीर मिसलाइन क्या है कि दोनों हरूफ एक जैसे होंगे। जैसे कद दाखिल में दो दाल है और दोनों दाल का आपस में इदगाम हुआ हुआ है, तो इसमें ताम होगा। मतलब आपके पहला दाल है उसकी कोई सिफ्त बाकी नहीं रहेगी, बस दूसरा दाल जो होगा उसकी सिफात अदा होगी। और मिसलाइन के मुदगम की हरूफ क्या है कुरान पाक में जो आए हैं हमारे पास, ठीक है। इदगाम मिसलाइन के 14 हरूफ में इदगाम हुआ है। इदगाम मिसलाइन 14 हरूफ में हुआ है, जिनका मजमुआ आप याद कर लेंगी तो और भी आसानी। फा वकल्लिम तहदी बिनज़ीर, ये 14 हरूफ है आपका। फा आइन वाव लाम काफ लाम मीम ता हा दाल बा नून दाल या रा, ये 14 हरूफ टोटल बनते हैं कुरान पाक में। और जब ये हरूफ आपस में आए हैं, इकट्ठे आए हैं, तो इनका इदगाम हुआ हुआ है। तो इनको ये इदगामी मिसाइल से भी, जब आपने मीम का मीम में भी किया था, जब हमने इदगामी शक्ल भी पढ़ा था, तो अब वहां पे लिखा भी हुआ था कि ये इदगामी मिसलाइन सगीर भी इसको कहते हैं। ठीक है, वो क्योंकि दो दोनों एक जैसे हरूफ थे, दोनों मीम थे। पहला जो मीम साकिन और दूसरा मीम मुतहरिक था, और वो एक जैसे हरूफ थे, उनमें भी इदगामी मिसलाइन सगीर काम होता है। अब इसमें कुछ मैं एग्जाम्पल देती हूँ, बाकी आप लोग अदा कीजिएगा। जैसे फला युसरिफ फिल कत्ल, युसरिफ का को हमने थोड़ा सख्ती के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये इनका इदगाम हुआ हुआ है। दो फा इकट्ठे आ गए। पहला फा आप देखेंगे, पहला फा जो है वो साकिन है, दूसरा फा जो है वो मुतहरिक है, और ये दो कलिमात के बीच में होते हैं। ठीक है, एक कलमे में नहीं होगा ये। जो इदगाम मिसलैन सगीर है, दो कलिमात में होगा। कि पहला फा यानी कि पहला जो साकिन लेटर होगा, एक तो पहले कलमे के एंड में होगा, और दूसरा जो मुतहरिक उसी जैसा लेटर होगा वो अगले कलमा के शुरू में होगा। तो वहाँ पे इदगामे मुस्लिम सगीर होगा। और यहाँ पे तस्ततिल तस्ततिल लई, तो इसमें आइन का इदगाम हुआ है। आप यहाँ पे भी देख लें। और यहाँ पे तुम मत्तक़ौ व अहसनु, मत्तक़ौ दो वाव है, इनका दो वाव का आपस में इदगाम हुआ है। कौवा, ठीक है, कौवा अहसनु युदरिकुमुल मौत, युदरिकुमुल मौत। आपने देखा यहाँ पे दो काफ है, लेकिन एक काफ पढ़ा जा रहा है, और वो सख्ती से पढ़ा जाएगा क्योंकि वहाँ पे इदगाम हुआ है। और अब लाम के देखें, कुल्लकुम, कुल्ला हमने कुल लाकुम नहीं पढ़ना, ये हमने दोनों लाम इकट्ठे आ गए हैं। तो कुल्लकुम पढ़ना है। और मीम फी कुलूबिहिम मरदुन, और ये सारे इदगामे जो है हुए हुए मिसलाइन सगीर की एग्जांपल्स हैं। एक जैसे हरूफ का इदगाम है इन तमाम में। ठीक है, आगे हम आप लोग प्रैक्टिस करें।